Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Parties and the Party System in India. And under this chapter we were doing about the presidential election of 1969, है ना? And in this we have seen that the Congress has filed the official candidate of the Congress party was Neelam Sanjeeva Reddy, who was not having good relationship with Indira Gandhi, and Indira Gandhi supported V.V. Giri, who was the vice president, current vice president. She supported V.V. Giri to file his nomination as an independent candidate, and at the same time she has also started so many big and popular policy measures like this nationalization of 14 leading private banks. Then the second one is the abolition of the privy purse, and these announcements were not liked by the syndicate leaders like Morarji Desai, who was at that time deputy prime minister and finance minister in the Indian government, and he did not like this. He and all the syndicate leaders were not in favor of all these policies, and so these are the two issues. One was presidential election and the other was the popular policy measures which were announced by Mrs. Gandhi. And now the differences between these two factions, we can say, एक तो syndicate हो गया and the second faction was led by the Prime Minister Indira Gandhi. तो ये जो differences थे अब वो बिल्कुल भी सामने आता जा रहा था, और if we can say that both the faction wanted a showdown which took place during the presidential election. We can say that the presidential election was the showdown, ki who is more powerful. And what happened during this presidential election, that the president of the Congress, he was S. Nizlingappa. You must remember the name, president of Congress. He was S. Nizlingappa, है ना? तो एस निजलिंगप्पा ने क्या किया, ही issued a whip. उन्होंने एक whip issue किया, and in this whip he asked all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of नीलम संजीवा रेड्डी, है ना? व्हिप का मतलब यही होता है कि एक वी कैन से एक ऑर्डर इशू किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी, हाउ योर बिहेवियर शुड बी, व्हाट यू शुड डू व्हेन समथिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक कोई भी रेजोल्यूशन आपके सामने आ रहा है तो उसको आपके फेवर में या उसके अगेंस्ट आपको वोट देना है, किसके फेवर में देना है, क्या करना है, फिर इस पर्पज़ से ही व्हिप जो है वो इशू किया जाता है. तो नीलम एस निजलिंगप्पा ने ये व्हिप इशू किया और ये कहा कि सारे जो MPs और MLAs हु टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दे विल गिव वोट इन फेवर ऑफ संजीवा रेड्डी, हु वाज द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी. एंड नाउ what we find that at that time the people, the leaders who were supporting Indira Gandhi, they requested a special meeting of the All India Congress Committee, AICC की. उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग की रिक्वेस्ट की, रिक्वेजिशन किया, उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाला कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. दिस इज कॉल्ड रिक्वेजिशन. रिक्वेजिशन है ना? तो उन्होंने एक रिक्वेजिशन डाला जो कि इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले थे कि एक AICC की मीटिंग होनी चाहिए. एंड दैट इज़ द रीज़न, ये जो रिक्वेजिशन इन्होंने डाला AICC की मीटिंग के लिए,
इसी कारण से ये जो इंदिरा गांधी वाला जो फैक्शन था जिसकी लीडिंग इंदिरा गांधी कर रही थी, दे केम टू बी नोन एज रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है, रिक्विजिशन में IST लगा दिया, तो रिक्विजिशन डाला इसलिए दे वर नोन एज रिक्विजिशनिस्ट। सो कांग्रेस आर के नाम से ये जाना गया। आगे चल के अभी उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो रिक्विजिशन इन्होंने डाला कि देयर शुड बी अ मीटिंग ऑफ AICC, दैट रिक्विजिशन वाज नॉट एक्सेप्टेड, इट वाज रिफ्यूज्ड बाय the party president, and then what happened that the Prime Minister Indira Gandhi, she was silently supporting VV Giri, and now she openly called for consign vote before the election of the president. Consign vote, it means that you don't no, it was not clear. Consign vote का मतलब ये हो रहा है that the MPs and MLAs from the Congress should be free to vote the way they want. They are free to vote the way they want. On the one hand, this Nizlingappa is issuing a whip that everyone, all the members of the Congress party, all the MLAs and MPs of Congress party should will have to vote in favor of Neelam Sanjeeva Reddy. On the other hand, Mrs. Indira Gandhi, the Prime Minister, is saying that all the MPs and MLAs of the Congress party are free to vote the way they want. They don't, it means, what does it mean? It means that the party MPs and MLAs were not required to follow the whip. You can go against the whip. This was the command of the Prime Minister. So it was a tussle, it was a conflict between the Prime Minister and the President of the Congress. तो इन्होंने जो कंसाइन वोट की अपील की, और उसकी वजह से ही अल्टीमेटली ये होता है कि जो इलेक्शन होता है वो उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि VV गिरी जीत जाते हैं. दैट वाज नॉट द विक्ट्री ऑफ VV गिरी actually it was the victory of Indira Gandhi. And this Sanjeeva Reddy, he was defeated, and this was the defeat of the syndicate leaders, because it was an open battle between Indira Gandhi, supporters of Indira Gandhi, and the leaders of this syndicate. So after the defeat of this Neelam Sanjeeva Reddy, now what was clear to all, that there will be a split in the party. So the Congress president, what he did, he expelled Indira Gandhi from the party, and now she started to claim, Indira Gandhi started to claim that her group was the real Congress. है ना, जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो भी नया एक पैदा होता है पार्टी, वो कहता है कि हम रियल कांग्रेस है ना. सो नवंबर 1969 में कांग्रेस जो था वो जो कि सिंडिकेट जिसमें लीडर्स थे, जिस कांग्रेस में सिंडिकेट लीडर्स थे, दैट केम टू बी रेफर्ड टू एज द कांग्रेस ओ. ठीक है, एंड द ग्रुप विच वॉज लेड बाय इंदिरा गांधी, दैट केम टू बी नोन एज कांग्रेस आर. सो नाउ नवंबर 1969 में ये दो पार्ट में हमारा बट जाता है कांग्रेस. एक तरफ है कांग्रेस ओ और दूसरी तरफ है कांग्रेस आर. अब कांग्रेस ओ में आपको ये बिल्कुल याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर और सिंडिकेट लीडर्स, जिसमें बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर थे लाइक मोरारजी देसाई. और कांग्रेस आर जो है दैट वाज इंदिरा गांधी एंड हर सपोर्टर्स. इंदिरा ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मलाइज हो जाता है, दो ग्रुप में बढ़ जाता है. ओके, यहाँ पर हम देखते हैं इसको और भी दूसरे तरह से भी एक्सप्लेन किया जाता है. लाइक इसको कांग्रेस ओ को ओल्ड पार्टी कहा जा रहा है, ओल्ड कांग्रेस है ना, कांग्रेस ओल्ड जो कि पुरानी वाली है. और ये जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है इसको न्यू कांग्रेस कहा गया, ओल्ड कांग्रेस न्यू कांग्रेस. ठीक है, अब क्या हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी सी what she started to project before the people that ये जो स्प्लिट हुआ कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का, इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया, तो ये जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई, what was the reason behind it, what she was projecting
in front of the people that it was because of ideological divide between the people who believe in socialism and the people who are conservative. Who were conservative? These syndicate leaders were conservative, and who were socialist? Indira and her supporters were socialist. तो दुनिया के सामने, लोगों के सामने क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हमने इतने जो अच्छे अच्छे मेजर्स लाए, लाइक मेजर्स का जो अनाउंसमेंट हुआ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ, नॉट प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक्स किया, 14 प्राइवेट बैंक्स के नेशनलाइजेशन की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 1969 में ही हुई थी. देन प्रीवी पर्स को एंड करना, जो कि बहुत ही बड़ा, सही में बहुत हिस्टोरिक काम किया इंदिरा गांधी ने. तो ये दो चीज़ें जो थी, ये इस आइडियोलॉजिकल रिफ्ट को दिखाती है कि हम प्रो पुअर पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं. हमने क्या कहा कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं, देयर शुड बी नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक्स. प्राइवेट का नाम जब भी हम लेते हैं तो प्राइवेट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड. तो जब भी किसी चीज़ की हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो दैट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर. एंड व्हेन एवर वी टॉक ऑफ नेशनलाइजेशन, और जब हम गवर्नमेंट के कंट्रोल की बात करते हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी इन फेवर ऑफ द पुअर. दैट मे नॉट बी द एक्चुअल केस, बट वॉट इज़ considered by the people, that if government is involved in economic activity, then it is going to help the poor people. So this was projected by Mrs. Gandhi, that we are poor people, we are socialist, we are adopting so many radical measures, and we are not getting support from these conservative people. We are not getting support from these syndicate leaders who are conservative, who want to continue with that old system. And that is the reason I have मुझे पार्टी से निकाला गया. इसी कारण उनका यही कहना था, लोगों के सामने उन्होंने यही प्रोजेक्ट किया कि दैट इज़ द रीज़न आई वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी. क्योंकि मेरे जो प्रो पुअर पॉलिसीज थे, उसको वो कंजर्वेटिव पीपल, दे वर नॉट लाइकिंग इट, है ना. सो वी कैन से कि जो कांग्रेस के जो दो कांग्रेस थे, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर, इनके बीच की जो लड़ाई थी, दैट वाज एक्चुअली प्रो पुअर एंड प्रो रिच. हम प्रो पुअर हैं. इंदिरा गांधी शी इज द सपोर्टर ऑफ पुअर्स. शी वाज प्रोजेक्टिंग लाइक दिस, एंड दीज सिंडिकेट लीडर्स, दे वर द सपोर्टर्स ऑफ रिच, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग प्रीवी पर्स. प्रीवी पर्स क्या था? जो हमारी देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स थी 565, जिनके बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, उनका इंटीग्रेशन हुआ 563, उनका इंटीग्रेशन हुआ इंडियन यूनियन में. और जब उनको इंटीग्रेट किया गया तो उनको ये एक एश्योरेंस दिया गया कि उनको हमेशा के लिए, नो टाइम लिमिट, हमेशा के लिए उनको एक अमाउंट ऑफ मनी जो है वो दी जाएगी. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर, जो उनका प्रॉपर्टी, वेल्थ और टेरिटरी था, उसके अकॉर्डिंगली उनको वो दिया जाएगा. ये प्रॉमिस किया गया. दैट वाज प्रीवी पर्स, है ना, एक टाइप ऑफ पेंशन पूरे हर समय के लिए. लेकिन हालांकि नेहरू वॉज ऑल्सो नॉट लाइकिंग इट, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था, बिकॉज उस समय का सिचुएशन ऐसा था, इनको मिलाने के लिए ये किया गया. बाद में ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट आ रहा था कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो क्यों हम इस रॉयल फैमिली को ये प्रीवी पर्स दे रहे हैं, जो कि पहले से ही रिच है, दे आर नॉट पुअर. तो एक रिच ग्रुप को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम सुविधाएं दे रहे हैं, एक और पुअर इतने हमारे देश में पड़े हुए हैं. तो ये एक बहुत ही रेडिकल मूव था इंदिरा गांधी का, और ये बहुत बड़ा, जिसको हम कहेंगे पॉलिटिक्स है, जिसमें कि इन्होंने प्रीवी पर्स को एंड करने का जो अनाउंसमेंट किया, बहुत रोड़े आए, ऑब्स्टेकल्स आए, मैटर कोर्ट में भी गया. अल्टीमेटली सी वॉन, अल्टीमेटली उन्होंने प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दिया. और ये उनकी पॉपुलैरिटी की जो बेस थी उसको बहुत बुरी तरह एक्सपैंड कर दिया. जो आज भी इंदिरा गांधी को याद किया जाता है, उसके लिए पीछे एक बहुत बड़ा ये इस तरह के जो मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए, जो किया उन्होंने, ना सिर्फ अनाउंस किया बल्कि एक्चुअली वो हुआ भी. एक बार पास नहीं हो पाया दोनों हाउस से, मैटर कोर्ट में गया, बट अल्टीमेटली सी मेड इट पास्ड. तो दिस वॉज द अचीवमेंट, एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर हर पॉपुलैरिटी, वन ऑफ द रीजन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों इंदिरा गांधी इतनी पॉपुलर हुई 1970s को जब हम स्टार्ट करते हैं. तो अब हम यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है. अब हम क्या देखेंगे, 1971 में इलेक्शन होता है, ठीक है. ये जो 1971 का इलेक्शन है वो बहुत ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग है.
सो व्हाट हैपेंड कि स्प्लिट हो चुका है कांग्रेस में, है ना, नवंबर 1969 में स्प्लिट हो चुका है, एंड विद दिस स्प्लिट इन द कांग्रेस द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी केम टू अ माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी में तो आ गई, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट में बनी रही। वाई? बिकॉज इट वॉज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम few other parties like Communist Party of India, DMK. They were the parties who were supporting Indira Gandhi government. So because of support from DMK and CPI, the Indira Gandhi was in power, still in power, है ना। And during this period Indira Gandhi, she made so many attempts to project its socialist credential, to project itself as a socialist party. And during this phase she also campaigned for implementing the land reforms laws, जो कि land reforms laws लाए गए थे उसको implement किया। then land sealing के जो act थे उसको implement किया। तो काफ़ी vigorously she was campaigning for implementation of these laws, because she has to project her party, she has to project herself as a socialist leader, as the leader of the poor people. So now what she was finding that she was not having clear majority in the house, and it was causing her a kind of dependence. Yes, she was dependent on other political parties, she was dependent on CPI, DMK. So she was not liking it. She wanted a popular mandate for her programs. She wanted complete majorities, her own majority in the house, and for that purpose this Indira Gandhi government recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1970. That Lok Sabha should be dissolved, है ना। This recommendation can be done by the Prime Minister anytime. So this is what we can say, that a very revolutionary decision was taken by, a bold decision taken by Indira Gandhi. She was in government, है ना, with the support of DMK and CPI. She was in government. She can continue with this ना। 67 में इलेक्शन हुआ था, 5 साल बाद 72 में इलेक्शन होता, बट उन्होंने 70 के दिसंबर में ही डिसॉल्व करने का रिकमेंडेशन कर दिया प्रेसिडेंट को, क्योंकि उनको ये इस बात का पूरा बिलीव था कि जनता उनके साथ है। अगर अभी हम इलेक्शन करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें मिलने जा रहा है। सो इट वॉज अ बोल्ड डिसीजन बट अ करेक्ट डिसीजन, बिकॉज जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए उसके कारण हम कह सकते हैं ये करेक्ट डिसीजन था, लेकिन वो डिसीजन लेने का जो हम कह सकते हैं कि जो गट्स, जो करेज उन्होंने शो किया, वो बहुत ही अप्रिशिएट करने लायक है, बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज। आज हम जब कॉन्सिक्वेंसेज जान गए हैं तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया, लेकिन सी वॉज नॉट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज एट दैट टाइम ना। कुछ भी हो सकता था, सी कैन गो आउट ऑफ पावर एज वेल। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया और इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो नाउ द कॉन्टेस्ट, द एटमॉस्फेयर फॉर द कॉन्टेस्ट वॉज स्टार्टिंग to be made, and what we find that कांग्रेस ओ को रियल कांग्रेस माना जा रहा था। कांग्रेस ओ के जो लीडर्स थे वो यही कंसिडर कर रहे थे कि जनता उनको ही रियल कांग्रेस मानती है, जनता उन्हें ही सपोर्ट करेगी। और एक तो ये चैलेंज था इंदिरा गांधी के लिए, क्योंकि नई पार्टी आई है, तो जो पुरानी पार्टी थी उसको हो सकता है कि जनता सही में ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। एक ये चीज़, एक चैलेंज था इन फ्रंट ऑफ गांधी, मिसेस गांधी। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि इसी समय एक ग्रैंड अलायंस जो है वो फॉर्म होता है। ग्रैंड अलायंस जो है वो किसका था? ऑल द नॉन कांग्रेस एंड द नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज। ठीक है, तो अब हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग द इलेक्शन ऑफ 1971। ठीक है, तो इस इलेक्शन में कौन कौन है पार्टिसिपेट करने वाले? एक तो कांग्रेस आर हो गई, है ना, दूसरी कांग्रेस ओ हो गई, और तीसरी जो है वो है ग्रैंड अलायंस। कांग्रेस आर जो कि नई पार्टी थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की लीडरशिप वाली। कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट लीडर्स थे जिसमें, और ग्रैंड अलायंस किसकी थी? जो नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस पार्टीज थे वो सभी एक साथ मिल गए, लाइक एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, एवरीवन केम टुगेदर, ऑल द नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैंड अलायंस। इसमें कौन से थे, कौन कौन
पार्टीज थे, मतलब नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस, ये आपको याद रखना है. एंड नाउ everyone is campaigning, but here we see that Indira Gandhi, she has a unique, she was a unique leader. She has this quality of leadership, and she was a great diplomat. She changed the complete thing in support of her against her opponent. What she said during the campaigning, that उनका जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इस समय चल रहा था, दैट वाज गरीबी हटाओ प्रोग्राम, अबाउट विच वी हैव डिस्कस. 67 में ही उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, गरीबी हटाओ का 10 पॉइंट प्रोग्राम. तो शी वॉज प्रोजेक्टिंग हरसेल्फ एज प्रो पुअर, शी वॉज प्रोजेक्टिंग हरसेल्फ एज अ सोशलिस्ट लीडर, है ना. तो अब वो क्या कह रही हैं कि what my party Congress wants to remove poverty, है ना, but what the opposition want to remove Indira. हम पॉवर्टी को हटाना चाहते हैं, और ये जो हमारे अपोजिशन वाले हैं ये सारे एक हो गए, ग्रैंड अलायंस बना लिया, वो हमारे सिंडिकेट लीडर्स हैं, वो हमारे अगेंस्ट है. दे ऑल वांट टू रिमूव इंदिरा. क्यों? अगर हम तो गरीबों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमने 10 पॉइंट प्रोग्राम लाया, हम सारे के सारे पॉलिसीज़ गरीबों के लिए अपना रहे हैं, हम गरीबी को हटाना चाहते हैं, बट वो तो इंदिरा को ही हटाना चाहते हैं. सो इन अ वे शी वॉज गिविंग द मैसेज दैट दीज कांग्रेस एंड ग्रैंड अलायंस, दे वर अगेंस्ट द पुअर. They were not in favor of the poor people of the country. They were favoring the rich people, because they are not favoring this Indira Gandhi. So in this way हम देखते हैं कि जो कैंपेनिंग था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से मोड़ दिया अपने फेवर में और अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट. और उसके बाद जब इलेक्शन होता है 1971 का, तो इस इलेक्शन का जो रिजल्ट था दैट वाज रियली शॉकिंग. बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जो कांग्रेस आर जो थी वो सीपीआई के साथ उसने अपना पैचअप कर लिया था. कांग्रेस आर इलेक्शन के दौरान कांग्रेस आर ने सीपीआई के साथ वो मिल गई थी. ठीक है, कांग्रेस आर जो सीपीआई के साथ मिल गई थी, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो दोनों के वोट्स थे उसको कितने सीट्स मिलते हैं. कांग्रेस आर और सीपीआई दोनों को मिला करके मिलते हैं 375 सीट्स. 375 सीट्स लोकसभा में दोनों को मिला के मिले. अगर हम सिर्फ कांग्रेस आर के सीट्स देखें तो वो कितने थे, दैट वाज 352, है ना. तो ये जो 375 कांग्रेस आर और सीपीआई दोनों को मिला के मिल रहा है, इसमें कांग्रेस को कितना मिला, 352, और बाकी का जो हुआ 23, है ना. 23 वोट्स जो है वो सीपीआई को मिले, और ये 352 वोट्स जो है वो कांग्रेस को मिले. तो क्लियर मेजॉरिटी इसको नहीं कहेंगे, इसको तो बम्पर मेजॉरिटी कहेंगे, है ना. तो इस तरह से इंदिरा गांधी तो बहुत ही बुरी तरीके से जीतती हैं इस इलेक्शन को, जिसका बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन कांग्रेस ओ के लीडर्स को नहीं था. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ओ जो थी उसको सिर्फ 16 सीट्स मिले. ओनली 16 सीट्स वर ओन बाय कांग्रेस ओ. सो यू कैन जस्ट इमेजिन द जस्ट कंपेयर कहाँ 352 और कहाँ 16. तो असली कांग्रेस कौन है, किसको जनता का सपोर्ट है, ये सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया. और नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रैंड अलायंस. ग्रैंड अलायंस को जो सीट्स मिले दैट वाज लेस देन 40. तो ये पता चला कि ग्रैंड अलायंस वाज अ ग्रैंड फेलियर. जो रिजल्ट्स आए उससे यही समझ में आए. तो ये रिजल्ट जो थे इससे अब इस इलेक्शन ने ये प्रूव कर दिया कि कांग्रेस में अगर कोई है लीडर तो वो इंदिरा गांधी ही है. और इसी समय 1971 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस आता है कंट्री में, एंड दैट वाज about this East Pakistan, about which you have studied in contemporary South Asia. किस तरह से पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो दो पार्ट्स में बटे हुए थे, एंड देयर वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बाय द वेस्ट पाकिस्तान, एंड दिस लेड टू द starting of the freedom movement in eastern Pakistan. And then when the brutality was done by this western Pakistan, then the people of eastern Pakistan started to fled to India. They started to take refuge in India, and in this
fight between East Pakistan and West Pakistan, India was with East Pakistan. India was supporting the cause of the freedom of the East Pakistan. India was supporting the cause of Bangladesh as East Pakistan. तो ये सब कुछ हो रहा था और इसमें रेफ्यूज़ी जो है वो बहुत बड़े नंबर में इंडिया में आते जा रहे थे. इस तरह के सिचुएशन में इंडिया ने इंटरफेयर किया इस ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के मैटर में. और इंटरफेयर करने के पीछे जो रीज़न बताया उन्होंने, बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरेंस ऑफ इंडिया देयर वाज दिस वॉर ऑफ 1971. दिसंबर 1971 का जो वॉर था वो इसी वजह से हुआ क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश के कॉज को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से ये वॉर हुआ. ठीक है. अब इस वॉर के लिए अगर ये कहा जाता है कि इंडिया को पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी ने जो अपना स्टैंड दिया वो ये कि इतने बड़े नंबर में जो रेफ्यूज़ीज़ आ रहे थे हम उसको मैनेज नहीं कर सकते थे. एंड बिकॉज ऑफ दीज रेफ्यूज़ीज़ इंडिया नीडेड टू इंटरफेयर इन दैट मैटर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. इसको हम उनका इंटरनल मैटर नहीं कह सकते क्योंकि उनके इंटरनल मैटर के कारण हम बुरी तरह अफेक्टेड हो रहे थे. सो वी नीड टू इंटरफेयर एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ दिस 1971 वॉर. एंड इन दिस वॉर वी वॉन वेरी बहुत ही बढ़िया से जीता हमने. 95,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमने अरेस्ट किया. तो इस वॉर ने 1971 के वॉर ने इंडिया के जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया के लिए बहुत ही इंडिया का जो कद था वो फिर से हमने हासिल कर लिया, बढ़ गया. हमारा जो 62 में हमने खोया था वो 71 में हमने पा लिया. बट हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 1971 के वॉर में इंदिरा गांधी का जो लीडरशिप था दैट वाज रियली फैबुलस, रियली मार्वलस. बिकॉज ऑफ दिस सी गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अपोजिशन लीडर्स एज वेल. यहाँ पर 1971 के वॉर के समय अपोजिशन लीडर्स ने भी उनको सपोर्ट किया. तो सी वॉज अ ग्रेट डिप्लोमेट. और इस तरह के ये जो चीज़ें हुई, इसी समय क्या होता है कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी हो जाते हैं 1972 में. और जो 1972 का स्टेट असेंबली इलेक्शंस होता है उसमें तो वो पहले से ही 71 का इलेक्शन में तो जीत ही चुकी थी नेशनल लेवल पे. अब स्टेट्स का इलेक्शन हो रहा था, जनता तो उनको सपोर्ट दे ही रही थी, प्रो पुअर उनकी छवि बनी हुई थी. अब एक और वी कैन से वन मोर फेदर वाज एडेड इन हर कैप, दैट वाज इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971. तो अब उनका सपोर्ट और भी बढ़ गया और उन्होंने अपनी फिर से कांग्रेस जो है वो उसी कंडीशन में आ गई जिस कंडीशन में वो 1967 के पहले थी. शुरू के 3 इलेक्शंस में जो कंडीशन थी कि स्टेट्स में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में कांग्रेस का ही रूल होता था, फिर से कांग्रेस उसी डोमिनेंट पोजीशन में आ जाती है. तो जिस डोमिनेंस को कांग्रेस ने 4th इलेक्शन में खोया उसको उसने 5th इलेक्शन में पा लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. बट हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड देखो इस चैप्टर का हालांकि अभी तो नाम है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, बट ओरिजिनल बुक में आप देखोगे व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम. ठीक है, चैलेंजेस क्या है हमने वो देख लिया. अब हम रीस्टोरेशन भी देख रहे हैं क्योंकि 71 का जो इलेक्शन है नेशनल इलेक्शन में भी कांग्रेस फिर से अपने प्रोमिनेंट पोजीशन में चली जाती है. स्टेट इलेक्शन में भी कांग्रेस फिर से सारे स्टेट्स पे अपना रूल स्टैब्लिश कर लेती है. सो दिस इज द रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस. ओके, चैलेंजेस हमने देखा, चैलेंजेस को इंदिरा गांधी ने बखूबी फेस किया और कांग्रेस सिस्टम जो ख़त्म हो चुका था, जिस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि कांग्रेस वाज नॉट वर्किंग एज अ रूलिंग पार्टी बट आल्सो एज दिस अपोजिशन पार्टी, है ना. रूलिंग पार्टी भी थी, अपोजिशन पार्टी भी थी, दोनों का रोल प्ले कर रही थी वो. तो अब हम क्या देखते हैं कि जो कांग्रेस है वो क्या हो गई कि फिर से कांग्रेस सिस्टम रिस्टोर कर गई. सो हियर restoration of Congress system. But here you must understand there is difference in this restoration of Congress system. Restoration हुआ
Yes, Congress was again in a dominant position as it was under the prime ministership, under the leadership of Nehru. But here, what you will find now the Congress has lost its basic character, its basic nature was lost. Now the Congress was not an all-inclusive party. It was not a party which was a coalition of different ideologies and different social groups. No, now it was only a party which has socialist ideology. Now it was only a party which have most of the support was coming from the poor people, the Dalits, the tribals, the women. So the nature was changed. जिस तरह का वो ऑल इंक्लूसिव पार्टी था, अब वो ऑल इंक्लूसिव नहीं रह गया. जिस तरह से उसमें हर ग्रुप था पहले के समय में, हर आइडियोलॉजी थी, अब वो नहीं रहा. न तो सारे के सारे ग्रुप्स हैं इसमें, न सारे के सारे आइडियोलॉजीज हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जो लीडरशिप की जो का नेचर था वो भी चेंज हो गया. नेहरू वॉज नॉट ए डोमिनेंट लीडर. जिस तरह का डोमिनेंस इंदिरा गांधी का दिखाई देता है, वो डोमिनेंस नेहरू में नहीं था. जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे, दे वर टोटली इन द हैंड्स ऑफ मिसेस गांधी. तो हम ये कहेंगे कि रेस्टोरेशन हुआ, बट ये रेस्टोरेशन इस तरीके से हुआ कि इसने कांग्रेस के नेचर और कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस. So we have completed the chapter, okay, and now we will start the next chapter in the next class.